مسیح میں میرے عزیزوں، آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے ساتھ ہم دونوں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں، ان کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، آرزو کوکب۔ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں، شکریہ، اور اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے پیار سے ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں، بہت شکریہ، اور اپنا وقت دیتی ہیں۔ خداوند آپ کو بہت استعمال کرے، بہت سی برکتیں دیں۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ تھینک یو شکریہ سسٹر جی۔ جیسے آپ جانتے ہو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک خاتون کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے خاتون کو ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ خاتون جو ہے وہ پیار کا پیکر ہوتی ہے۔ خدا نے محبت کے لیے بنایا عورت کو، بالکل، اور بہت پیار ہوتا ہے اس کے دل میں، بہت بڑا دل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بہت ساری چیزیں وہ اس میں سمو لیتی ہے، سارے رشتوں کو بڑے اچھے طرح سے نبھا لیتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کیا سمجھتی ہے، اس کے لیے زیادہ کیا ضروری ہوتا ہے، محبت یا عزت، یعنی رسپیکٹ، کہ لوگ یا رشتہ دار یا بچے یا شوہر یا ماں باپ بہن بھائی وہ اس سے محبت زیادہ کریں تو اسے اچھا لگتا ہے، یا اس کی رسپیکٹ زیادہ کریں تو اسے اچھا لگتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ بالکل، میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، میں ضرور آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ بے شک، کیا ہو، بہت خوب یہ کسی نے کہا ہے، اور مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے سوچ بچار کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز پکڑ میں آ ہی جاتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہو گے؟ سسٹر، بینگ اے فیمیل، میں اس چیز کو سمجھتی ہوں جب آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ محبت یا عزت دونوں میں سے ایک بات، تو میرے خیال میں محبت کی جو پہلی شرط ہے وہ عزت ہی ہے۔ بہت اچھا، اگر ہم اس بات کو دیکھیں، کیونکہ جو عزت نہیں دے سکتا وہ محبت تو پھر دور کی بات ہے۔ اور پھر اگر ہم کلام کے حوالے سے بھی دیکھیں، کلام مقدس میں جیسے ایمان، امید اور محبت، تو اگر ہم دیکھیں، ہم عزت کرنا ہر رشتے میں جانیں گے تو محبت تو خود بخود پیدا ہوتی جائے گی اور وہ اپنا راستہ بنا لے گی ہر رشتے میں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزت کا ہونا زیادہ ضروری ہے، اور ہر رشتے میں ہی، کیونکہ اگر آپ کسی کا خیال نہیں کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کی فیلنگز کی، اس کی ذات کی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر محبت ہونا تو میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کی باتوں میں سے ہی بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں کہ خیال رکھنا، محبت کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ ساری تینوں جو ہیں وہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گھرانے، وہ نسلیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا نہیں جانتے۔ بالکل، آج کل ہماری جو میں اپنے پاکستان اور انڈیا کی بات کروں گی، ہماری جو عام لینگویج ہو گئی ہے، گالی دینا، کسی کی بھی برائی کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی عادت ہو چکی ہے جس کا ہم بالکل محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ بری بات ہے، مطلب بات کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک گالی جڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ یہ غور کریں کہ ہم ایک عورت کی بات ابھی کر رہے ہیں نا، خواتین کے بارے میں، کہ اس کو رسپیکٹ چاہیے پہلے یا پیار چاہیے، تو ہر بری گالی میں ماں کا، بیٹی کا، عورت ہی کا نام لیا جاتا ہوتا ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں اس میں، میں ڈس رسپیکٹ کی بات آ گئی۔ بالکل اسی لحاظ سے میں نے گالی کا ذکر کیا کہ ہر گالی میں جو ہے وہ عورت ہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے ہم آدھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک گالی کو جوڑتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک طور بن چکا ہے، ایک طریقہ بن چکا ہے جو ہمارے بچے بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اور کہنے کو ہم بڑی رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں تو وہ کتابوں میں، لفظوں میں ہے نا، ہمارے کردار میں تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ ضروری ہے کہ نظر آئے نا، کچھ ایکٹ ہو اس کا۔ تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، میرے خیال میں ان سے رابطہ ہو چکا ہے، میں ضرور کوشش کرتی ہوں، دیکھتے ہیں۔ ان کا نام ہے صبا، اور میں تھوڑا سا اور ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ جتنا میں جانتی ہوں وہ ایک نفیس خاتون ہے، اور
मतलब जितनी वो नफीस हैं उतनी ही नफासत से बात भी करती हैं जी और उनकी बातों में खिर्द जिसे दानिशमंदी कहा जाता है उसकी झलक नज़र आती है। बिल्कुल। और यहीं हॉलैंड में मुकीम हैं। उनके 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा ह्यूमन राइट से मुतालिक कोई भी बात हो तो वो भी बहुत एक्टिव होते हैं और ख़ुद भी वो बहुत लिबरल सी खातून हैं। जी, जी। तो देखते हैं हम, वो हमारे साथ हैं अगर तो। ज़रूर। हेलो हेलो, जी गुड सबा, इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दी, पर थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैंने ऐसा ही पाया आपको सबा। और आप और तारीफ Thank के you, लायक हैं, thank you। इसीलिए हाँ तारीफ बिल्कुल, की है जी। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि मुबालगा आराई से ज़रा गुरेज करें। बिल्कुल। और मैं सच में आपको ऐसा ही फील करती हूँ और आप में ये सब बातें हैं जो मैंने महसूस की, वो उनका बिल्कुल। बयान किया। आप Thank डिज़र्व you, करते thank हो you very और much। हम बहुत खुश हैं कि आज आप इस प्रोग्राम की जीनत बने हो, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सबा, आज हमारा जो टॉपिक है वो अगर आप लाइन पर थे तो शायद आपने सुना भी हो कि हम ये देखना चाहते हैं, जी ज़रूरी तो दोनों चीज़ें हैं, मोहब्बत भी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन एक बिल्कुल। खातून होते हुए हमारी फीलिंग्स क्या हैं? हमें पहले रिस्पेक्ट चाहिए होती है या मोहब्बत से काम चल जाता है, रिस्पेक्ट चाहे हो या ना हो? सिर्फ मोहब्बत से काम बिल्कुल भी नहीं चलता। हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है। और जैसा कि जो दूसरी सिस्टर है उन्होंने भी बात की थी कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो प्यार जो है, मोहब्बत जो है, वो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। फिर जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी के साथ आप अच्छे तरीके से रहते हो, तो प्यार जो है वो भी खुद ब खुद जो है वो साथ साथ चलता है। तो अगर तो सिर्फ प्यार है और रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो फिर रिश्ता जो है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, वो फिर उसमें मजा नहीं आता। तो रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा जरूरी है। अच्छा, आपके नज़दीक रिस्पेक्ट का तरीक़ेकार क्या है? आप किन चीज़ों को शामिल करते हो रिस्पेक्ट में कि क्या हो तो हमें फ़ील होगा कि वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है? या हमारा शौहर, किसी भी रिश्ते को ले लें आप, शौहर हो अपना जैसे कि औरतों के बहुत सारे लतीफ़े बने होते हैं, औरतों पर ही बात होती है कि औरत को बिल्कुल। ऐसे ज़ाहिर किया जाता है कि औरत का आईक्यू लेवल भी कम होता है मर्दों से। औरत जो है वो समझती नहीं है बात को। औरत जो है वो, मतलब इस तरह के जितने लतीफ़े हैं वो आप सुनोगे। गाली, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, गाली गलौज में भी औरत जी। ही का नाम। तो रिस्पेक्ट के क्या तरीक़ेकार हैं? कैसे रिस्पेक्ट करवाई जा सकती है और कैसे महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये रिस्पेक्ट है? सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रिस्पेक्ट गया लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। बहुत से फर्क तरीके हैं। अब जैसे अगर आपका हस्बैंड है और आपको कोई डिसीजन है घर के, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, कोई आपको इनविटेशन के लिए इनवाइट करता है कि हाँ भाई आप घर पे आए, हमारी तरफ चाय पिए, और आपका हस्बैंड कह दे हाँ हाँ ठीक है हम लोग आएंगे, तो उसमें उसने मुझे शामिल नहीं किया कि हाँ भाई तुम्हारी कोई प्लानिंग है, कुछ है। तो ये भी इट्स अ वे ऑफ रिस्पेक्ट। दूसरा ये भी है जो आप बात कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्राइव कर रहे हो और हाँ ये देखा ये गाड़ी गई है, इस तरह से इसने किया, तो ये जरूर कोई औरत होगी जो हाँ, चला ये तो रही है। हर दफ़ा होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ ये सही बहुत बात सारा मैंने सुना है। अच्छा। तो बहुत सी बातें हैं जिसकी, और ये फिर आप एक डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना भाई। बहुत से मर्द हैं जो गाड़ी अच्छी नहीं चलाते, बहुत से हैं जो चलाते हैं। इस तरह औरतों का भी है, लेकिन औरतों का फिर एकदम से वो नजर में आती है कि हाँ भाई देखा ये औरत थी, इसने गाड़ी कैसे पार्क की है। तो अच्छा, बहुत सी चीजें होती है। आप अगर हस्बैंड वाइफ को लिया जाए तो उसमें ये है कि आप हर एक चीज में अगर अपनी वाइफ को साथ लेके तो डिसीजन करते हो, या अगर आपकी तरफ फ्रेंड्स आए हैं, फैमिली आई है, आप उसके हंसी मजाक चलता है, बट कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो आप नहीं, अगर आप करोगे तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि इस तरह से आप अपनी बीवी की इज्जत कर सकते हो, या अपनी माँ की, अपनी बहन की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिस्टर जी लाइन पे रहिएगा, हम दोबारा आपसे कनेक्ट यस, करते हैं। जी ओके। सिस्टर जी।
जैसे अभी गुफ्तगू जारी जी, है, बड़ी मैंने इसलिए खूबसूरत उनको बात बोला की कि उन्होंने, जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि हम भी कुछ अपना जी, बिल्कुल। इजहार ख्याल करें। क्या ऐसे ही कहोगे है। आप? जी, जैसे अभी ये बात इन्होंने लास्ट में की है कि छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे को इज्जत देना सीखें। मियाँ बीवी से ही उन्होंने बात की, ड्राइविंग और मुख्तलिफ जो उन्होंने हवाले दिए। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हम मियाँ बीवी या औरत के साथ तस्वीरों में खुश ना नज़र आए, वो तो हर कोई दिखावे के लिए दिखता ही है। हम ना सिर्फ बाहर लोगों को दिखाने के लिए अपनी बीवी, अपनी बहन, उनकी इज़्ज़त करें कि जी बड़ा मैं अपनी बीवी का ख्याल रख रहा हूँ, बल्कि घर में छोटी छोटी बातों में मशावरत से चले, पूछ के उसको भी हम ये महसूस कराएं कि वो एक मेरे लिए इज़्ज़त की जगह पे है, खुदावंद ने भी उसे मेरे साथ जोड़ा है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं उसको साथ लेके चलूँ। तो ये है कि रिस्पेक्ट, जैसे हमारी अभी कॉलर है वो भी कह रही हैं और मैं मेरी ज़ाती भी ये राय है कि इज़्ज़त जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम एक वाइफ़ की भी बात करें और इसी तरह से बाकी रिश्तों में तो है ही, माँ है या बहन है। तो हमारा जो मौजू आज का है कि मोहब्बत से पहले हमें इज़्ज़त करना ज़रूरी सीखना चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ जी। मैं भी सिस्टर जी कुछ कहना चाहूँगी सबा, आपसे भी बात करते हुए कि हम इस प्रोग्राम को जब करते हैं तो बेशक इसका नाम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए मखसूस है और हम ज़्यादातर बात इसी हवाले से करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने मनफी पहलुओं को भी ज़रूर नज़र में रखें। बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इज़्ज़त चाहते हैं और वो बस चाहते रहें और हम इज़्ज़त देना। कहते हैं कि जो खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बहुत से घरानों में अब ऐसा भी है कि हम इज़्ज़त खुद के लिए तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने शौहर को, अपने भाइयों को, अपने बाप को खुद इज़्ज़त नहीं दे रहे होते। हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी बातों में, लेकिन हम इस तरफ ध्यान भी नहीं लगाते क्योंकि हम एक औरत हैं, इसका एडवांटेज लेते हैं कि नहीं जी मेरी नहीं हो रही। होता नहीं, देखिए वो तो डू रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। हम अगर इज्जत नहीं करेंगे अगले को, दूसरी जो ऑपोजिट हमारे हैं कोई भी मर्द, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसको हम अपनी ज़िंदगी में ऑनर नहीं देंगे, तो क्या होगा? उसके दिल से भी आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी मोहब्बत है वो भी निकल जाएगी ना। जब हम अपने एटीट्यूड से उसके लिए कुछ इज्जत को नहीं जाहिर करेंगे तो फिर हम कैसे बदले में चाह रहे हैं कि वो हमें इज्जत दे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी हम एडवांटेज लेते हैं कि हम खातून हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो औरत हूँ, मुझे तो कुछ समझा नहीं जाता, या मुझे, लेकिन खुद हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। तो सबा आप क्या बोलोगे इसके लिए? नहीं, ये तो वाकई में बिल्कुल गलत है। जैसे वो आपने कलाम की बात की कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे नहीं पा रहे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा आपकी करे। तो हाँ, ये तो बहुत एक गलत चीज हो जाएगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये गलत चीज़ हो जाएगी। अब हम आते हैं इस तरफ कि हम कैसे रोक सकते हैं ये जो माशरे में एक बीमारी की तरह फैल चुकी हैं बातें औरतों के खिलाफ, और मर्दों का तो अगर मैं मर्द हजरात बुरा ना माने तो ये मशगला होता है कि औरत को कैसे जो है वो ज़ेर बहस लाया जाए और फिर कोई ना कोई उसकी मनफी बात को लेके तो फिर उस पर बात की जाए और सब हंसी मजाक उड़ा रहे होते हैं, और मजाक उसमें औरत बहुत ज़्यादा अपने आप को कमतर भी फील कर रही होती है और तज़लील भी फील कर रही होती है, कमतर भी फील कर रही होती है, और फिर वो अपने आप को वहाँ खड़ा ही नहीं पाती। वो समझती है कि यार मैं तो कहीं, और ये अक्सर निजी महफिलों में, यानी जहाँ पे 4 फैमिलीज इकट्ठी हुई हों, यहाँ पे माजरत के साथ मर्द हजरात जो हैं उनसे वो छोटी छोटी बातों में ऐसे ही अपनी बीवी या कुछ ऐसे उनके बारे में बात कर जाते हैं तो फिर इससे उनकी बाहर है। हाँ, फिर इससे हम औरतों की बर्दाश्त भी देखते हैं कि बहुत सा वो बर्दाश्त भी कर लेती हैं। लेकिन इस आदत पे कैसे कंट्रोल पा सकती हैं औरतें? क्योंकि बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम एक दूसरे को खुद डिग्रेड कर रहे होते हैं, तब जाके मौका मिलता है एक मर्द को कि वो हमें डिग्रेड करे। क्या आप इत्तेफाक करते हो दोनों इस बात से या नहीं करते? आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। कुछ वाकई ऐसे
फ्रेंड्स होते हैं वह सही में फिर आपके वो फ्रेंड्स एक्चुअली नहीं होते, या कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो करते हैं, एंड आई थिंक के मे बी आउट ऑफ जेलसी कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो फिर वाकई आपको जहाँ पे 4-5 लोग हों तो आपको कोशिश करते हैं कि बुरा भला कहें, और फिर दूसरे जो हैं उनको मौका मिल जाता है उनको भी कुछ कहने का। तो हाँ, ये बात आपकी ठीक है। अगर हम कई जगहों पे सिर्फ देखा जाता है कि आदमी डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, उसको कोई पॉइंट नहीं चाहिए होता दूसरी औरत की वजह से, बट कई जगह पे जहाँ पे आप कह रहे हो उस तरह से भी आदमियों को मौका मिलता है। तो या बिल्कुल उसमें यही है कि आप बहुत सिंपल है ये चीज कि अपने आप में खुश रहो और एक्चुअली दूसरों को भी खुश रहने दो। इतना मुश्किल है नहीं है। कईयों को वाकई आपको अपनी फितरत चेंज करनी पड़ेगी, अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी, और कईयों के लिए ये चीज बहुत मुश्किल है, बट अगर देखा जाए तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो आप दूसरे को नहीं ऐसे पॉइंट आउट करोगे किसी महफिल में। यानी कि आप अपने आप को पॉजिटिवली इतना बिजी कर लो कि आपको इधर उधर की गैर ज़रूरी चीज़ें नज़र ही ना आए, आप इग्नोर करो इन बातों को, अपने अंदर तहम्मुल बर्दाश्त, शायद उनके कहने का यही मतलब है कि पैदा कर ले। अगर कोई ऐसी कोई बात कर भी रहा है तो हाँ, लेकिन आपकी इस बात से मुझे वो बिल्ली और कबूतर वाली मिसाल याद आती है ना। तो वो बात तो वहीं मौजूद रही ना, ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। जो मेरा जो नज़रिया है कि हमें इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, और वो काम ये है कि अगर बीवी के बारे में शौहर कुछ कह रहा है तो उसकी सास वहाँ खड़ी हो जाए कि ना बेटा ऐसे नहीं बोलते, लेकिन तेरी माँ भी किसी की बीवी थी। सिस्टर, आप अभी हम जैसे बात कर रहे थे तो मैं ये समझती हूँ कि शौहर को इतना साबित कदम होना चाहिए कि किसी दूसरे इंसान को मौका ही ना मिले कि उसके सामने वो उसकी औरत, उसकी बहन, बीवी, किसी की भी बुराई करे। तो मतलब अगर वो खुद मिल जाएगा लोगों के साथ, जैसे अभी बात हमारी चल रही थी, तो फिर तो मौका बाहर के लोगों को तो मिल ही जाता है ना। जैसे वो मजाक में बात कर रहे हैं या वो कोई अपनी जेलसी की स्पिरिट में बात कर रहे हैं, तो अगर हम साथ बैठ के मौका देंगे तो फिर तो वो घर के बेदी, आप समझते ही हैं, लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए, वो बात एक अलग बात है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सबसे पहले असल में होता ये है कि औरत का साथ नहीं दे रही होती। बहुत कम ऐसा फैमिलीज में देखा गया है कि औरत का साथ दे रही हो, बल्कि उस बात को वो बढ़ावा देते हैं। अक्सर वो मिल जाए तो बस उसको वो बोलते हैं कि हाँ हाँ तूने बिल्कुल सही किया है, ये बिल्कुल ऐसी थी, इसी काबिल है, ये इसको दबा के रख। और ज़रा सा अगर शौहर फेवर में हो जाए तो तब भी बहुत बातें होती हैं कि जी वो थल्ले लग गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो हम औरतों को, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम औरतों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वहाँ पे अगर बड़ी बहन है, उसकी नंद है, उसकी सास है, अगर भाई कह रहा है छोटी बहन को, तो बड़ी बहन को स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो हाँ वो सही कह रहा है, वो भाई है, उसकी माननी पड़ेगी। ये वाली जो बातें हमारे माशरे का हिस्सा बन गई हुई हैं, इस वजह से ये बातें हमारी जो रिस्पेक्ट जो है वो कम से कम तर होने की वजह पीछे हम खुद भी हैं। तो इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा। क्यों सबा, आप क्या कहते हो? हेलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहन जी, मैं यहीं पे हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब खासतौर पे एक सास जो है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है फैमिली का। बिल्कुल, जब सास कुछ बोल दे ना तो बस वो तो फिर पूरा घर सुनता है। तो ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सास को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए, और वाकई में फिर आप दूसरों को भी जगाते हो, वो भी जागते हो यार ये एक्चुअली ये माँ तो मेरी है, भाई ये साइड इसकी ले रही है। तो भाई हमें कुछ दिमाग में फिर क्लिक करता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट कह रही है ये, तो वो फिर इंसान जो है ना वो फिर बिल्कुल डिफरेंटली सोचता है, वो फिर एकदम से पूरा घर हिल जाता है, यानी सोचने पे मजबूर हो जाता है ना वो भी, दूसरा शख्स भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से मेरा ख्याल है कोई भी अगर, जैसा कि आपने कहा कि उसकी नंद है, बड़ी बहन है, कोई भी अगर अपनी आवाज उठाता है तो वो फिर वाकई में सुना जाता है। तो ये बात आपकी वाकई में बहुत अच्छी है। हम कई दफा हम लोग अपनी आवाज उठाते नहीं है, बाद में सोचते हैं कि यार वैसे उसके साथ गलत हुआ है,
नहीं, वो कह सही रही सी, हाँ, होता है ना। بعد میں جب ہم وہ سب ہو جاتا ہے تو جب عورتیں بیٹھتی ہیں تو بولتے ہیں نہیں بات وہ صحیح تھی، ویسے کر وہ صحیح رہی تھی بات، لیکن پھر اب اگر وہ صحیح کر رہی تھی تو آپ نے اس کا ساتھ اس وقت کیوں نہیں دیا؟ یعنی آپ آپ کو کو دینا مطلب ہے کہ چاہیے. ہمیں اپنے اس رویے پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. بینگ اے فیمیل ہم ایک دوسرے کی نہ صرف رسپیکٹ کریں، پیار دیں اور اس جیلسی کو ختم کریں. رسپیکٹ لائیں نہیں، بالکل ایسے نہیں ملے گی، ایسے ہی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا، بالکل پھر ملے گی. اور پھر اس رسپیکٹ میں ہم پیار کو خود بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنی پاور ہے، ہمیں خدا نے پیار کرنے کی طاقت دی ہے. اور بینگ اے کرسچن تو بالکل محبت کے تو لیے وہ ہم اسے پیار کی طرف لا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. پیار کا تو کلیہ یہ ہے نا جی کہ یا اپنا کسی نو کر لے یا آپ کسی دا ہو بے لیا. تو بس پیار کا تو کلیہ یہی ہے، اور کوئی کلیہ ہے نہیں. سب آپ بہت تھینک یو کال پر آنے کے لیے، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، اور ہمارے سننے والوں کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی. اگلے کسی پروگرام میں ہم پھر آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ہمیں امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا. جی ہم امید کرتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر شامل ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، لیکن بالکل مت بھولیے کہ BTL کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ باتیں جو ہم یہاں بیٹھ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ بھلائی بہتری کی بات آگے پہنچے. ہاں جی بالکل. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.